ریلی کے اختتام پر ایک اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے میں نجیب کی والدہ فاطمہ نفیس کے علاوہ ممبئی ہائی کورٹ کے سابق جسٹس بی جی کولسے پاٹل، آل انڈیا مجلس مشاورت کے قومی جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ فاروق، گنگادھر مہاراج کرندکر کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ تمام دانشوروں نے ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے خلاف تشویش کا اظہار کیا۔ جے این یو کے ذہین اور باصلاحیت طالب علم نجیب احمد کو 15 اکتوبر کو اغوا کر لیا جاتا ہے، جبکہ میڈیا میں اس کی گمشدگی کی خبریں آتی ہیں۔ نجیب احمد کی گمشدگی کے بارے میں ان کی والدہ کا صاف الزام ہے کہ نجیب گم نہیں ہوا ہے، بلکہ اسے اے بی وی پی کے گنڈوں نے اغوا کیا ہے۔ نجیب کی والدہ فاطمہ نفیس نے بسمت کے جلسے سے خطاب کے دوران اپنے بیٹے کی گمشدگی سے متعلق ساری رودات سنائی۔ نہایت جذباتی انداز میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کیا۔ نجیب غائب نہیں ہوا، نجیب کو غائب کیا گیا ہے۔ نجیب تو اپنے روم میں نماز پڑھ کے کلام پاک پڑھ کے لیٹا تھا، اس کو کھٹکھٹا کے نکالا گیا باہر، اور پہلے اس پہ 3 لوگوں نے حملہ کیا، پھر 9 لوگوں نے مارا اس کو، تب بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ لاتے گھوسے تھپڑ چپل جو بھی کچھ ہاتھ آیا سب طرح سے پیٹا میرے بچے کو، پھر بھی انہیں اکیلے پہ رحم نہیں آیا۔ کال کر کے اور لڑکوں کو بلایا، بچانے والوں نے اسے لے جا کے ناک سے منہ سے خون بہ رہا تھا، باتھ روم میں منہ دھونے کے لیے لے گئے اس کو، وہاں بھی بیٹھ گئے، پہنچ گئے بچے اندر، وہاں بھی اس کو بہت مارا۔ پھر بچوں نے کہا، بچانے والوں نے کہ پہلے وارڈن کو بلاؤ، سیکیورٹی کو بلاؤ تو نجیب کو باہر نکالو۔ سیکیورٹی آئی، وارڈن آیا، لیکن نجیب کو آگے کر دیا گیا، پیچھے سیکیورٹی اور وارڈن تھا۔ 150 لوگوں نے بچے پہ میرے حملہ کیا، اس کو بری طرح سے مارا، بال سر سب کچھ اس کا پکڑ ڈالا۔ میرے بچے نے پھر بھی افرے اور معافی مانگتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، لیکن بس ظالموں نے نہیں سنی، اور میرے بچے کو لگاتار اوپر سے لے کے نیچے تک مارتے ہوئے لائے، ہاسٹل تک، وارڈن کے روم تک مارتے رہے۔ اب وارڈن نے کچھ نہیں کہا، سیکیورٹی گارڈ نے بچایا، سب ہٹ گئے۔ جب میں نے ان سے سوال کیا کیوں کیا آپ نے، تو کہہ رہے میڈم 150 لوگ تھے، ہم کیا کرتے، بتائیں میرے بچے کا کیا کیا ہوگا ان لوگوں نے۔ میں بار بار جب یہ یاد کرتی ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ میرا بچہ تو گھر میں بھی کبھی کسی سے اف نہیں کرتا تھا، چھوٹے بھائی میں بھی کچھ کہہ دیتے تھے تو ہنس کے ٹال دیتا تھا۔ میرا نجیب تو بہت سیدھا ہے، پڑھنے کے اور نماز کے سوا اس کا کوئی اور کام نہیں دوسرا۔ اس کے بعد اس کے بچے کچھ بچانے والے اس کو لے جاتے صفدرجنگ ہاسپٹل، وہاں کہا جاتا ہے پہلے پولیس FIR کرو تو ہم میڈیکل کریں گے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے پڑھنا ہے، میرا کیریئر کالا ہو جائے گا۔ اس نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی، وہاں سے مجھے فون کیا، امی مجھے ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کہنے لگا امی مجھے مارا پیٹا گیا ہے، ان لڑکوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ میں نے بتایا کہاں لگی ہے چوٹ تمہیں، امی پریشان مت ہو میں ٹھیک ہوں کہہ کے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے روم پارٹنر کو فون کیا، کیا ہوا میرے بچے کو۔ اس نے کہا آنٹی آپ گھبرائے نہ، نجیب ٹھیک ہے، اس کو ہاسپٹل لائے لیکن میڈیکل نہیں کرا رہا ہے، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، وہ ہاسٹل نہیں جانا چاہتا۔ میرا بچہ امی امی کہہ کے میرے پاس آنا چاہتا تھا، اس کو روکو سنبھالو، امی آ رہی ہے اس کے پاس۔ راستے بھر میں اس سے کانٹیکٹ میں رہی، برابر میں اس سے بات کرتی رہی، اور جب میں آنند وہار پہنچی بس اڈے پہ تو اس نے مجھ سے کہا امی کہاں ہو، میں نے کہا میں پہنچ گئی ہوں، بس اب پہنچنے والی ہوں تمہارے پاس۔ لیکن جب میں ہاسٹل پہنچی تو 12:30 بجے میرا بچہ مجھے نہیں ملا، ظالموں نے میرے بچے کو غائب کر دیا، اس زخمی حالت میں کہاں ہے میرا بچہ۔ تقریر کے دوران نجیب کی والدہ نے یہ بھی الزام لگایا، دہلی پولیس نے ابتدا میں نجیب کی گمشدگی کے مسئلے پر ان کی اپنی مرضی کے مطابق
FIR दर्ज करने नहीं दी, बल्कि इन्हें यह एहसास दिलाया गया कि नजीब को 24 घंटे के अंदर तलाश कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में पुलिस अपने वादे से मुकर गई। मैं बार बार दिल्ली पुलिस से यही पूछती हूँ कहाँ है मेरा नजीब, 3.5 महीने होने के आए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उल्टे सवाल मुझसे किए जाते हैं, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, मेरे जानने वालों के घर छापे मारे जा रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया वो खुले घूम रहे हैं, उनसे कोई नहीं पूछता तुमने क्यों किया ऐसा। ये इंसाफ है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुआ। मेरे बच्चे पे तरह तरह के इल्जाम लगाए, मेरा नजीब इतना टैलेंटेड है कि 4 यूनिवर्सिटी क्वालिफाई करके वो JNU पहुंचा और उसको रोक लिया गया कि आगे जाके ये अब्दुल कलाम न बन जाए, इसलिए कि मुसलमान आगे कुर्सी पे बैठेंगे तो हमारी मनमानी नहीं चलेगी। नजीब की वालदा ने अपनी तकरीर के अख्तिताम पर पूरी कौम को ये पैगाम देने की कोशिश की कि वो अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाएं, ताकि हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होकर APJ अब्दुल कलाम की तरह मुल्क का नाम रोशन करने वाले बने। मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोग भी मुझसे वादा करिए कि हम नहीं रुकेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, JNU भेजेंगे और ऑक्सफोर्ड भेजेंगे और हम नहीं रुकेंगे। मेरा नजीब जहाँ कहीं है, आप लोगों की दुआ से वो सलामत है, मैं जानती हूँ मेरा बच्चा जहाँ कहीं है सही सलामत मुझ तक जरूर पहुँचेगा। आप लोगों की आवाज अल्लाह के दरबार में जरूर एक दिन कबूल होगी, वो बच्चों को मेरे वापस करेगा। बस मैं इतना ही कह पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बसमत का बच्चा बच्चा नजीब की बरामदगी और बाजियाबी का ख्वाह है। इस बात को बताने के लिए जलसे का आगाज ही एक मासूम तालिब इल्म की तकरीर से हुआ। निहायत जज्बाती अंदाज में इस मासूम ने अपनी तकरीर के दौरान मुल्क के हुक्मरानों से कई सवालात कर डाले। खास तौर पर नजीब की गुमशुदगी के मसले पर हुकूमत वक्त को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में बढ़ते हुए जुल्म के हवाले से अपनी बात को पेश करते हुए इसने कहा, मौजूदा हालात में मुल्क के शहरियों को तरक्की की नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की ज़रूरत है। इस मासूम ने अपने वलवला अंगेज खिताब में कहा कि नजीब सिर्फ फातिमा नफीस के बेटे नहीं बल्कि मुल्क के बेटे हैं। हुक्मरानों को ललकारते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात के जरिए तुम हमें हिरासा नहीं कर सकते। जलसे के दौरान मारूफ समाजी कारकुन व साबिक जस्टिस BG कोलसे पाटिल ने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर नरेंद्र मोदी को खिद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क के मौजूदा हुक्मरान RSS के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। जस्टिस पाटिल के मुताबिक हम RSS से नजरियाती लड़ाई लढ रहे हैं की या देशातली न्याय संस्था, या देशातले पोलीस, या देशामधलं जी म्हणून व्यवस्था आहे ती या RSS ने पोखरलेली आहे। एक भाऊ IB चा प्रमुख असतो, दुसरा भाऊ RSS चा प्रमुख असतो, जावई पोलीसचा प्रमुख असतो, सासरा RSS चा प्रमुख असतो। पोलीसचा प्रमुख रिटायर होतो, RSS मध्ये जातो, मिलिटरीचा प्रमुख रिटायर होतो,
बीजेपी मध्ये जातो, आयबीचा प्रमुख रिटायर होतो, आरएसएस मध्ये जातो. कोण चालवतो हा देश? त्यांना सत्तेवर यायची पण गरज नाही. आरएसएस ला सत्तेवर यायची गरज नाही. त्यांनी मोदी तुमच्या पुढे एक प्यादं बसवलेलं आहे, बाहुली त्यांना बसवलेलं आहे फक्त तुमच्या पुढे दाखवण्यापुरतं. सगळा कारभार आरएसएस करतंय. मराठा तबके के साथ साथ मुस्लिम समाज में इंतशार और अदम इत्तेहाद पर जस्टिस कोलसे पाटिल ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि मजहब और ज़ात पात के नाम पर मासूम अफराद को बहाम लड़ाने वालों से हमें चौकस रहना होगा. ज़ात पात और ज़बान की बुनियाद पर इम्तियाज़ किए बगैर हमें संगी ज़हनियत के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा. नजीब की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है. आता ते म्हटले की ते 31% पुढे फक्त निवडून आले तर आम्ही सगळे 69% आहोत. पण 69%ची अवस्था काय? 69% अशा पद्धतीने विभागले गेलेले आहेत की कदाचित ते 20%वर सुद्धा निवडून येतील. आमच्या विभागण्या झालेल्या आहेत. का कोण करतो विभागण्या? कोण करतं विभागण्या? तर त्यांना जे संघाला पाहिजे होतं ती विभागणी त्यांनी केलेली आहे, जी सर्वात मोठी जात असते. म्हणजे मराठ्यांची आज अवस्था अशी आहे, मराठा मित्रांनी समजून घ्यावं की जर खऱ्या अर्थाने सगळे मराठे एकत्र आले आणि त्यांनी सगळ्या जाती धर्मातले लोक बरोबर घेतले तर हा भारत देश आहे तोपर्यंत मराठे दिल्ली आणि मुंबईवर सत्ता गाजवतील अशी परिस्थिती आहे. परंतु मराठ्यांचे नेते त्यांना एकत्र येऊ देत नाहीत. प्रत्येक जसं मुस्लिम बांधवांचं आहे तसंच आहे, प्रत्येकाचं दुकान आहे आणि त्या दुकानं चालू राहिली पाहिजेत. संपूर्ण मराठा समाज एकत्र आला तर आपल्या दुकानाचं काय होईल? संपूर्ण मुस्लिम समाज एकत्र आला तर आमच्या दुकानाचं काय होईल? जी मुस्लिम नेत्यांना भ्रांत आहे तीच मराठा नेत्यांना भ्रांत आहे. मी असं म्हणेल की आम्ही सर्वांनी की सर्व नेत्यांना सध्या फाट्यावर मारलं पाहिजे आणि सगळ्या गरिबांना एकत्र घेऊन आम्ही संघटन केलं पाहिजे. ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा फारूक ने कहा कि नजीब की गुमशुदगी मुल्क के इंसाफ पसंद अफराद के लिए चैलेंज से कम नहीं. ये मुल्क जमहूरी बुनियादों पर कायम हुआ था और इसे इसी राह पर चलना होगा. फाशिस्ट नजरियात और ख्यालात के हामिल अफराद को यहाँ कोई जगह नहीं. आज जो लोग सत्ता में आए हैं, हालांकि वो संविधान में विश्वास जता कर आए हैं, उस पर ओथ लेकर आए हैं, लेकिन संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रही है ये हमारे लिए नई नहीं है. हम उनको गुजरात से देख रहे हैं. ये संविधान जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करता है, हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने जो है डैमेज किया है, डिस्ट्रक्ट किया है. वहाँ रहते हुए पुलिस का जो मिसयूज है तो वो सारे नाम हमारे सामने है. पांडे हो, बंजारा हो, चुडासमा हो, वो सारे ऑफिसर्स हैं जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया और पुलिस को मिसलेड किया. आपने जुडिशियल सिस्टम को इतना डिस्ट्रैक्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को गुजरात कोर्ट के बारे में कहना पड़ा कि यहाँ पर केसेस सुनवाई नहीं हो सकती और केसेस को गुजरात के बाहर भेजना पड़ा. और जो लोग सत्ता में थे आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी जो खुद को आदर और मूल्य और नीति की पार्टी कहती है, उनके जो नेता हैं उनकी पेशानी पर उनकी हरकतें लिखी हुई. ये तो सत्ता ने आपको मौका दे दिया, अवसर दे दिया, वरना दिल आपके सामने झुक नहीं सकते. इसलिए जो बात कहेगी कि अपनी मन की बात आप कह सकते हैं, दूसरों के मन की बात आप सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते आप. देश का सिस्टम इतना सक्षम है कि आज अगर इनसे पूछो तो बता देंगे कि नजीब की क्या कैफियत रही, लेकिन बताना नहीं चाहते ना. और ये वक्फे से हो रहा है. आपने अभी यहाँ मोहसिन की बात सुनी, हैरत होती है कि वो जस्टिस जो पहली बिल रिजेक्ट करते हैं, सेम जस्टिस उसको जस्टिफाई करते हुए कहता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है. धर्म तो धर्म के नाम पर खोल दीजिए और धर्म के नाम पर नष्ट कर दीजिए. न ये धर्म की सेवा है, न ये देश की सेवा है, न ये मानवता की सेवा है. इजलास के दौरान गंगाधर महाराज कुरुंदकर ने भी अपने खिताब के दौरान मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश जाहिर की. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुल्क का दस्तूर खतरे में है और दस्तूर और जमहूरियत को बचाने के लिए अब वक्त आ गया है कि हम अपने आपसी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहिद हो जाएं. कि मानवता के जो भी कोई दुश्मन है उन सबको खत्म करना चाहिए. जो अराजकता है, इस देश का संविधान खतरे में है.
पूरे जो देश का संविधान खतरे में, इसको बचाना होगा। जब तक अपने स्कूल में संविधान ये पढ़ाई में नहीं होगा, ये लोग समझ में नहीं आएंगे। अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, जब तक हम नहीं पहचानेंगे तो हम लड़ाई किसके खिलाफ करेंगे। पहले हमें ये समझना चाहिए, ऐसी शिक्षा होना चाहिए, हमें स्कूल में होना चाहिए, और हमारी माँ बहनें जो है, भाई बहनें जो भी है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। जलसे के दौरान नजीब की गुमशुदगी के अलावा मारूफ दानिश्वर, नरेंद्र दाबोलकर, गोविंद पानसरे, MS कलमुर्गी, दादरी के अखलाक अहमद और पुणे के IT इंजीनियर मोहसिन शेख के कत्ल, इन तमाम वाक़यात की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और इन वारदातों को एक नज़रियाती जंग करार दिया गया। बसमत का यह एहतजाजी मुजाहरा सिर्फ इस वजह से नहीं था कि नजीब की गुमशुदगी पर अफसोस जाहिर किया जाए, बल्कि यहाँ के लोग नजीब की वालदा को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनके बेटे की गुमशुदगी की तशवीश में वो अकेली नहीं, बल्कि पूरे लोग उनके साथ है और उनके हक में ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि नजीब मिल नहीं जाता। ये तब तक आप मालूम होते हुए बर्दाश्त करेंगे, तब तक इंतजार करेंगे कि ये पार्टी आएगी मदद करेगी, वो पार्टी आएगी मदद करेगी, वो नेता आएगा मदद करेगा। मैं किसी पार्टी के मुखालिफत में नहीं, लेकिन इस मन से मैं सबको दावत देना चाहता हूँ, जो जो लोग अपने पार्टी को मुसलमानों की हमदर्द बोलते हैं, यकीन मानो कसम खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जात है, तुम नजीब को वापस लाके दो, जिंदगी भर अब्दुस्समाद तुम्हारा गुलाम रहेगा। सबके हाजिर नाजिर जानते हुए हमारे अम्मी से कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग लब्बैक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे बाप भी ये लड़ाई नजीब की लड़ेंगे, और जब तक नजीब वापस नहीं आता इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नजीब 25 करोड़ नहीं 125 करोड़ इस मुल्क के अमन पसंद अवाम की फिक्र हो चुकी है। इस प्रोग्राम का दूसरा अहम मकसद ये था कि आज मुल्क के हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। मुसलमानों और दलितों के खिलाफ फिस्ताई और भगवा तंजीमें तरह तरह की साजिशें कर रही है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान और दलित और दीगर पसमानदा तबकात का यहाँ जीना मुश्किल हो जाए। ऐसे पुराशोभ दौर में ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों में समाजी बेदारी का एहसास पैदा किया जाए। इसी तरह तमाम मजलूम तबकात को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए और नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो जाएं। आज भी मुल्क की अक्सरियत अमन व अमान और भाईचारा चाहती है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने नापाक सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। बसमत में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम को अपने मकसद में कामयाब बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस तहरीक से वाबस्ता हो जाएं। बसमत का ये प्रोग्राम इस तहरीक का आगाज़ है। इस तरह के सैकड़ों प्रोग्राम मुल्क भर में लेने की ज़रूरत है। जब भी जहां कहीं इस तरह के प्रोग्राम के लिए आपको शामिल होने की अपील की जाएगी, आपसे गुजारिश है कि अपनी तमाम मसरूफियतों को बाला ताक रखते हुए इसमें शामिल हो जाएं। ज़ाफ़रानी क़ुव्वतों के खिलाफ ये जद्दोजहद किसी एक शख्स की जद्दोजहद नहीं, बल्कि ये तमाम इंसाफ पसंद लोगों की जद्दोजहद है। इससे पहले कि फ़िरक़ा परस्ती की ये आग हमारी दहलीज तक पहुँच जाए, हमें मिलजुल कर इसका मुकाबला करना होगा।